Welcome back, students. This is your lecture number 4, class 10th, organic chemistry, chapter number 8. And the topic for today's discussion is your functional groups. What are functional groups and how they affect the properties of other compound when they get attached to it. Okay, that is known as a moiety. Okay, in higher classes you will know what is moiety. A moiety in an organic compound which alters the characteristic reactions of that particular compound, that is called as your functional group. In simple words, we can say that functional group are the group of atoms which alters the characteristic properties of a compound. For example, let's talk about a familiar example you would have known about COOH. Okay, suppose this is a group COOH, functional which is known as carboxylic group. Okay, this is carboxylic group. Suppose I'm talking about a simple hydrocarbon that you would have known. Suppose you know about this. This is a ethane. Okay, this is ethane. Okay, eth means two carbon and ene means single bond. Okay. Now suppose under the action of any reagent it got converted to carboxylic acid. What it will give you? It will give you CH3, CH2, COOH. Okay, this is just an example. So now this particular compound has attached a group of atom with it. Which group of atom it is? C2O1H. This is a group of atoms. How many atoms are here? One carbon, two oxygen, one hydrogen. So that's why I said to you the definition of functional group as a group of atoms. So first point is, what is functional group? Functional group is a group of atoms. You should know it's a group of atoms. Now what it is doing? See, earlier its property was something else. It was ethene. The property of hydrocarbon is their own characteristic. For example, if you make them to react with oxygen, they give carbon dioxide and water. Now this particular compound won't give you that type of reaction. Why? Because there is a group of atom COO and H which have altered its property. Now it will give all the characteristic reaction which is associated with this carboxylic group. Okay, so what does it does? The first thing, functional group is a group of atom which when attached alters the property of compound. Okay, this is the simple definition. Alters means change, which changes the property of a compound. Okay, it can be any of the compound. Here we have taken the example of hydrocarbon. आप हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लीजिए, किसी और चीज़ का एग्जांपल लीजिए, फिर सिर्फ आपको सोचना क्या है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होगा. अभी तुमने एक ही डिस्कस किया और भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम होगा लाइक COOH, which what it can do, it can alter the property of the compound. It will alter the property of the compound means ये उस compound की property को change कर देते हैं. कब? जब ये उस particular compound से attach होते हैं. Clear? तो simply functional group of atom which alters the property of a given compound. तो पहला example आपके पास था COOH का. ऐसे कुछ और example ले लेते हैं. Suppose आपके पास जो book में दिया है वो है OH वाला group. ठीक, इसको alcoholic group. फिर आपके पास है CHO. दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप. ठीक है, कई और तरह की भी, लेकिन जो फिलहाल आपकी बुक में उन्हीं को डिस्कस करेंगे. आपके पास OH है, CHO है, COOH है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप से ही आती है. ठीक है, C डबल बॉन्ड वाले ग्रुप से निकलते हैं. और CHO में आपके पास एक और आता है C डबल बॉन्ड O वाला, इसको बोल देते हैं कीटोनिक ग्रुप. कीटोनिक ग्रुप भी आप इसमें थोड़ा, अगर आप चाहें तो थोड़ा अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकते हैं. एक और ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं आपका कीटोनिक ग्रुप. ठीक है, तो ये भी क्या ग्रुप ऑफ एटम्स है. देखिए, कार्बन ऑक्सीजन एक ग्रुप है, CHO एक ग्रुप है, OH एटम्स का ग्रुप है, COOH एक एटम्स का ग्रुप है. तो ये सब आपके क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप. ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, सब फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, और ये करते क्या है? ये आपके कंपाउंड की प्रॉपर्टी को ऑल्टर कर देते हैं. यही आपकी क्या है? ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है. ठीक है, अब जरा वन बाय वन इनकी नेमिंग भी देख लेते हैं. ठीक है, एक ही करके आप क्या करेंगे, आपके फंक्शनल ग्रुप्स को लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसके बेस पर नेमिंग भी स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, ताकि आपको अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो आप उसकी नेमिंग कर सको. ठीक है, तो पहला ग्रुप जो आपको दिया वो है आपका OH ग्रुप. लेकिन स्टार्ट करते हैं आपके इजीएस्ट ग्रुप से. नंबर 1 देखिए आपका OH ग्रुप.
ठीक है, OH ग्रुप। इस ग्रुप में आप क्या करते हो, आप OL ऐड कर देते हो किसी भी एल्कीन में। ठीक है, देखिए आपके पास एल्कीन है, आपके पास है कोई एल्कीन, आपने क्या करना है इसमें माइनस ई को माइनस कर लेंगे आप, और यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस OL। ऐसा आपको क्या मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम और उसको क्या कहते हैं आपका, देखिए ALKAN, वैसे का वैसा ही है। ठीक है, ALKAN, आपने ई को रिप्लेस करा ऑल से तो बन जाएगा एल्केनॉल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सपोज आपके पास है CH3 अगेन इथेन ले लेते हैं, और ये क्या बन गया आपका CH3CH2OH। ठीक है, आपने KOH वगैरह ऐड किया और क्या कर दिया, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया अल्कोहल में। ठीक है, तो एल्केनॉल इसका नाम हुआ। पहले इसका नाम क्या था, इथेन। पहले इसका नाम क्या था, एल्केन के बेस पर था इथेन, अब हो जाएगा एल्केनॉल, यानी इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। ठीक है, बहुत ईजी है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपने पढ़ा वो क्या आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप वाला क्या होता है आपके पास OH ऐड होता है। अब एक सेकेंड फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं आपके पास। देखिए पहला आपके पास OH है, एक ले लेते हैं आपका CHO ग्रुप। जहाँ पर भी आपका CHO ग्रुप होता है तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर आपने OL ऐड करा, वहाँ पे आप कर दीजिए AL। मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ एल्केन की, वो क्या हो जाएगा एल्केनल। फॉर एग्जाम्पल देखिए यही एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको अगर मैं मल्टीपल एग्जाम्पल दूंगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो बार बार इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इथेन वाला CH3 आपने लिया, रिएजेंट से रिएक्शंस करवाई, और आपको क्या मिल गया, सपोज CH3CH2CHO। ठीक है, आपको ये मिल गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या हो गया 1 2 और 3। आप उसको क्या बोल दोगे, प्रो नेमिंग करी थी इससे पहले, नेमिंग आपने इससे पहले नेमिंग को देखा था। अब ये मत कहना कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट उसी नाम से लिया, जैसे आपका इथेन का बन गया इथेनॉल, तो यहाँ पे बनना चाहिए था इथेन का इथेनल, नहीं, क्योंकि आपका जो CHO ग्रुप है अपने साथ क्या लेके आता है, 1 मोर कार्बन। तो ये मिस्टेक कई बार एग्जाम में आपसे हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको बोलते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO। ठीक है, फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एल्डिहाइड। ठीक है, जब एल्डिहाइडिक ग्रुप को अटैच करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1 मोर कार्बन मिलता है। अब जब आप कहाँ जाओगे अपने IUPAC नेमिंग में, तो C एंड C 3C आर देयर, मीन्स प्रॉप AN तक आप वैसे ही गए जैसे आपका ये वाला रूल था, लेकिन अब OL की जगह आप क्या ऐड करोगे AL। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनल। ऐसे आप किसी और एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने दिया यहाँ पर CH3CH2CH3। ठीक है, आपने क्या लिया CH3CH2CH3, मतलब आपने लिया प्रोपेन, आपने रिएजेंट से रिएक्शन करवाई और किस में कन्वर्ट हो गया CH3CH2CH2 और 1 मोर CHO। ये कहाँ से है आपका फंक्शनल ग्रुप से। ध्यान रखिए जब भी आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होता है वो क्या करता है, अपने साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन लाता है। तो हमेशा इथेन का बन जाता है प्रोपेनल, प्रोपेन का बन जाएगा ब्यूटेनल। क्लियर, तो आपको ध्यान रखना है कि नेमिंग के टाइम पर, सॉरी एल्डिहाइड के टाइम पर आपको क्या मिलता है, 1 मोर कार्बन इंक्रीजमेंट मिलता है। तो आपका नेमिंग क्या हो जाती है, थोड़ा एक ऊपर कार्बन से एक ऊपर कार्बन आप शिफ्ट कर देते हो, उसके बेस पर आप उसकी नेमिंग करते हो। सो रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप 1 कार्बन विल गेट इंक्रीज्ड। ठीक है, एक और आपके पास जो ग्रुप में देखिए नंबर 3 आपके पास है COOH ग्रुप, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें क्या जुड़ता है आपके पास COOH। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने यही लिया इथेन, और ये कन्वर्ट हो गया आपका अगेन किसमें CH3CH2COOH। क्या नोटिस करने को मिला, सेम वही 1 मोर कार्बन गॉट इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हो, यू आर जस्ट एडिंग अ फंक्शनल ग्रुप देयर, बट दैट फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी कंटेन्स 1 कार्बन विद इट। सो व्हाट इज द नेम नाउ, सी इथेन। और यहाँ पर क्या जुड़ता है आपका, ध्यान रखिए जब भी आपका COH ग्रुप जुड़ता है तो आप जोड़ देते हो ओइक ग्रुप, या आप ओइक एसिड भी कह देते हो। ठीक है, ग्रुप से बढ़िया आप क्या लिखिए ओइक एसिड। आपने ओइक एसिड ऐड कर देना है किसकी जगह पर, जैसे आप आपने ई को रिप्लेस करा था। ठीक है, जैसे आपने ई को रिप्लेस करा, आप क्या करोगे, ई को हटाकर ऑल, जैसे आपने ऑल यूज़ करा किस लिए, OH के लिए, AL यूज़ करा प्रोपेनल के लिए, सॉरी एल्डिहाइड के लिए। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ई को रिप्लेस करके ओइक। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास कोई एल्कीन है, ठीक है, आपने ई को हटाना और क्या जोड़ देना है, ओइक एसिड, बस इतना सा। ठीक है, तो समझ का नाम है इथेन। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 का हो गया, इथेन से बन गया, मतलब प्रोपेन वाला 3 कार्बन चीज बन गई। तो आप क्या लिखोगे, PROP
PROPANE, ठीक है, PROPANE, E होता है ना आपका, प्रोपेन होता है तो 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, फॉर 3 कार्बन द नेम इज प्रोपेन, बट E you have to replace with OIC, so what the name, what is the new name now, propanoic acid, क्लियर, प्रोपेनोइक एसिड। अगर आप 3 कार्बन का लेते हैं, सपोज आप 4 कार्बन का लेते हैं तो क्या होता है, देखिए 4 कार्बन का आपका नाम क्या आना था, ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई रिप्लेस होता और 1 कार्बन इंक्रीज होता तो ब्यूटेन बन जाता प्रोपेन फॉर्म में, तो सॉरी पेंटेन फॉर्म में, तो आपके लिखते हैं पेंटेन, यहाँ तक तो एन तक सेम है, फिर आपका क्या कर देते हैं ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, यहाँ पर क्या है प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है इसमें और इसमें आपका 1 कार्बन चेन इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर एक आपके पास आता है कीटोनिक ग्रुप, जो मोस्टली आपके बुक में है नहीं, लेकिन देख लीजिए, इसमें आपका क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ऑफ सी, इस तरीके से आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, 10th लेवल पर आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। समझ आपके पास है CH3, सी डबल बॉन्ड O, CH3, तो आपको कौन सा ग्रुप मिला, देखिए आप अगर इसको सिर्फ इस पार्ट को देखते हो तो आपको कौन सा ग्रुप मिला, ओन ग्रुप, इसको कहते हैं ओन, ONE, यहाँ पर जो सफिक्स आप यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो, ONE, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पर मिलता है तो आप क्या कह देते हो कि ये क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप। ध्यान रखिए सी डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप जहाँ पर आपको मिल जाता है वहाँ पर आप क्या कह देते हो, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पर क्या लगा देते हो, ONE, जैसे अब यहाँ पर ONE लगाना, देखिए आपको क्या लगाना है, ONE, ध्यान रखिए सफिक्स याद रखना आपको बहुत जरूरी है, देखिए यहाँ पर आपके पास OL, यहाँ AN, यहाँ पे ओइक एसिड, यहाँ पर ओन, तो आपके पास कार्बन कितने चेन का, देखिए 1 2 और 3 में क्या यूज़ करते हो, प्रोप, 3 में क्या यूज़ करते हो, प्रोप, तो आप क्या लिखोगे, PROPAN, यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पर सफिक्स क्या यूज़ करना है, ऑन, तो प्रोपेनॉन, आपने क्या नाम बोल दिया इसका, प्रोपेनॉन। अगर एक कार्बन और होता, सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3, अब कितने मिला आपको, 4 कार्बन का मिला, तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन, एन तक तो ठीक है, फिर आप क्या लगा दोगे, ऑन, यानी ब्यूटेनॉन, क्लियर। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे जो आपकी बुक्स में थे और आपको नेमिंग के साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिए गए हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग योर कार्बोनिल ग्रुप, कई बार आप सुनोगे कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप से ही आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल ग्रुप से ही आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप बनते हैं। कैसे, देखिए सब मैं बात कर रहा हूँ कार्बोनिल ग्रुप की, थोड़ा ये औरों से अलग हो जाता है तो इसको अलग से डिस्कस भी कर लेते हैं। कार्बोनिल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा हो और वैलेंसीज ऐसी है, ठीक है, वैलेंसीज आपके पास ऐसी है, तो इन्हीं में आपको मिलता है 2 तरह के ग्रुप। मेन जो 2 हम डिस्कस करें वो आपके पास कौन से हैं, एल्डिहाइड और आपके कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन यहीं से निकलते हैं आपके। मेन जो इनका पेरेंट ग्रुप है वो आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, जिससे निकलते हैं आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप। अभी बनते कैसे, देखिए सपोज मैं इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पर रखता हूँ, देखिए डबल बॉन्ड O इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी थी, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अल्काइल लगा दिया और यहाँ पर H लगा दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पर भी H लगाया, यहाँ पर भी H लगाया, सी डबल बॉन्ड O। दोनों केसेस में मुझे क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड, दोनों केसेस में एल्डिहाइड मिलने वाला है। क्यों, अगर मैं इसको निकालूँ अलग से, देखिए इस वाले पार्ट को अगर मैं अलग कर लेता हूँ तो आपको क्या मिला, CHO, CHO किसका ग्रुप है, एल्डिहाइड वाला। यहाँ से मैं किसी को भी पिक कर सकता हूँ, सपोज मैं फिर से इसी को पिक करा, फिर से मुझे क्या ग्रुप मिला, CHO, क्लियर। तो कार्बोनिल ग्रुप से आप एल्डिहाइड ग्रुप बना सकते हो, जो आप क्या करते हो, व्हेन द कार्बन वैलेंसीज गेट सेटिस्फाइड बाय 1 एल्किल एंड 1 हाइड्रोजन और बोथ हाइड्रोजन। केसेस आपको याद रखना है, अगर बोथ हाइड्रोजन सेटिस्फाई होती है तब भी एल्डिहाइड है, अगर केवल एक वैलेंसी एल्काइल से सेटिस्फाई होती है तो तब भी आप क्या बोलोगे, एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपकी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई होती है किससे, एल्काइल से, फॉर एग्जांपल देखिए CH3 आपने एक वैलेंसी सेटिस्फाई करी कार्बन की, दूसरी भी सेटिस्फाई कर ली किससे, एल्काइल से, अब आपको जो मिलने वाला है वो एल्डिहाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको CO तो मिल रहा है लेकिन आपको ये H नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको ये H नहीं मिल रहा है तो ये किस में चला जाता है, फिर आपका कीटोन में। कीटोन की गाड़ी नाम क्या है, ONE, जो आपने इससे पहले किया है प्रोपेनॉन, वो यहीं से आया। कीटोन ग्रुप कहते हैं जब आपके पास क्या हो, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए दोनों एल्किल से, तो आप क्या कह देते हो कि वो एक कीटोनिक ग्रुप है। तो वहाँ पर क्या जुड़ जाता है, ONE, ध्यान रखिए क्या जुड़ता है, ONE, कीटोन के लिए ONE। लेकिन ध्यान रखना आपको कार्बन चेन्स का,
ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हैं, छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल में आपके पास जुड़ेगा OL, एल्डिहाइड में जुड़ेगा AL, फिर आपके पास कीटोन में जुड़ेगा ONE और आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जुड़ेगा आपका ओइक एसिड। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आपके पास क्या हो रहा है, कार्बन की एक चेन बढ़ रही है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपके पास अगर सपोज प्रोपेन है तो आगे चलकर जो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी उसका क्या नाम होगा, तो डेफिनेटली आप प्रोपेन का लिख दोगे प्रोपेनोइक एसिड। आपको ध्यान रखना है कि एक कार्बन चेन इंक्रीज होती है एल्डिहाइड और उसके कार्बोक्सिलिक एसिड के केसेस में। तो ये सम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स विच वर इन योर बुक विच वी डिस्कस with the naming also. If they are attached to a hydrocarbon, what will be the name, that also we have discussed here. So I hope the video will be helpful for you. So till then, keep growing, keep studying. Thank you.